Friends, welcome on Europedia, and this particular video is the solution of questions asked from energy and environment in engineering services paper 1 preliminary for year 2020. So engineering services introduced paper 1 as preliminary general aptitude paper, and that was done in 2017, then followed by 2018, 2019 and till 2024. So we have all these years of papers, and on Europedia we are providing you the solution for that. Europedia, as you know, is the largest platform where you can prepare for paper 1 of engineering services, that is general aptitude paper. If you really want to score high in this paper, I think you can prepare with mentors of Europedia. Now this particular my lecture is related to energy and environment engineering services exam preliminary 2020, and that is for energy and environment topics. So energy and environment syllabus as mentioned in engineering services is very concisely mentioned, but yes, जब आप इसका देखते हैं, जब आपके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पेपर्स of all these years asked in engineering services, then you get an idea that what topics we have to prepare. And though environment science is quite a vast subject, quite a vast domain, but very simple straightforward questions sometimes are asked in the preliminary. If you have knowledge about the topics, then you can get 10 to 15 questions correct from this particular topic. So sometime 13 questions are asked in one of the papers. 2021 lesser questions were asked, so vary karta hai, lekin on an average 9-10 questions will surely come from these topics. So let's start, friends, and this one is 2020 paper. So let's start with the questions which were asked from energy and environment in engineering services exam preliminary from energy and environment. So which of the following region is characterized by sensitive ecosystem, enhanced occurrence of extreme weather events and natural catastrophe? So sensitive ecosystem का ये definition है. Sensitive ecosystem is the ecosystem. There are different kind of ecosystem, and sensitive ecosystem is that where you observe these kind of natural disasters and catastrophes and extreme weather occurrences, उसको sensitive ecosystem बोलते हैं. So tropical, tundra, evergreen ये थोड़ा ज़्यादा stable है. This entire thing is more stable. So tundra also, as you know, tundra, Kaga, upper Russia, उसमें इतने catastrophe नहीं होते, less people reside, and that is the catastrophe is less. Evergreen forest region also it's a quite a stable, and उतना ज़्यादा इसमें आपका natural catastrophe नहीं होता. Man-made catastrophe we are not talking about, but natural catastrophe is not there. Similarly, tropical region, but mountainous region is actually the sensitive ecosystem, because in mountainous region we observe lot of also, and other kind of natural disasters also occurring, earthquake and all. So this is the sensitive ecosystem. Why it is called sensitive ecosystem? Sensitive ecosystem is that which is ecologically sensitive, and it is rare in its landscape. मतलब इसका landscape थोड़ा अलग सा होता है, जिससे plant and animal, flora and fauna gets threatened because of this landscape, and biodiversity is significant there, and also human activities are also to great extent are responsible to change the landscape. जो human being वहाँ रहते हैं वो उनकी landscape के साथ interference होता है, and because of that there are natural catastrophe. So they are quite fragile in the landscape and subjected to natural catastrophe, extreme weather. आपने देखा होगा in India also, Himalayas की तरफ if you see, whenever road development is to be done, when you are making some roads and all, then the fragile mountainous region, there is a lot of landslide, earthquake, flooding and all these things, cloud burst. So all these things you observe in the forest system. So small change in environment and it leads to lot of trouble in this sensitive ecosystem. This ecosystem is also called sensitive क्योंकि इसमें बहुत से endangered species रहते हैं, plants, animals वगैरह रहते हैं, और वो इसको और sensitive बनाते हैं. और forest को क्यों बोलते हैं sensitive ecosystem?
क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत इंट्रिकेट रिलेशनशिप होता है इनका एक दूसरे के साथ, और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिसरप्ट दिस डेलिकेट बैलेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वाई फॉरेस्ट इज सपोज टू बी द सेंसिटिव इकोसिस्टम। सो माइनर चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमन एक्टिविटी, मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटी बताया, लैंड स्लाइड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैटास्ट्रॉफ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। अगर छोटा सा ह्यूमन एक्टिविटी होगा तो उससे ये जो माउंटेन हैं इनका इकोसिस्टम सारे के सारा गड़बड़ाएगा, जिससे ऑब्वियसली डेलिकेट बैलेंस जो खराब हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस इनकी होती है फॉरेस्ट की, बहुत से स्पीशीज होते हैं और उनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस होता है। तो बेसिकली जब डिसरप्शन होगा एक पॉपुलेशन में तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे के पूरे इकोसिस्टम में भी होता है। सॉइल हेल्थ, ऑब्वियसली फॉरेस्ट जो है उनका रिच एंड फर्टाइल सॉइल होता है और उसको काफ़ी टाइम लगता है डेवलप होने के लिए। सॉइल क्रूशियल होती है न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए, एंड डिस्टर्बेंस लाइक डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ कैन सीवियरली डिग्रेड सॉइल क्वालिटी। दैट इज अनदर रीजन व्हाई इट इज़ द सेंसिटिव इकोसिस्टम। बहुत से रीजंस आपको पता चल रहे हैं, बहुत से फैक्टर हैं which may spoil the ecosystem and sensitivity of this particular ecosystem, like this wildfire वो जंगल के अंदर ही होता है, deforestation जंगल के अंदर ही होता है, landsliding because of the cutting forest के अंदर होता है। So this small changes eventually will spoil the balance and recovery is quite slow। forest को grow करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो trees हैं उनको centuries लग जाती हैं grow होने के लिए, and that also is one of the reasons। सो माउंटेन रीजन में या फॉरेस्ट रीजन, माउंटेन रीजन इज सेम। ये बेसिकली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप यहाँ पे इनमें आप देख सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन फॉर दैट। सो वुडलैंड एंड फॉरेस्ट आर बेसिकली दिस काइंड ऑफ सेंसिटिव इकोसिस्टम, एंड आई थिंक लॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन related activities can create a trouble in its dynamic equilibrium। So this all I think is the reason। So woodland, old forest, karst as the example of sensitive ecosystem in the mountainous region, right? So this what is evergreen forest, tropical region already we know, near equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn, you know। So tundra region is Arctic region, climate is very cold and windy and very less rainfall you can observe। So yes, sensitive ecosystem was forest ecosystem। Okay, so out of these which one is iterative and evolutionary process for achieving the sustainable development? अगर आपको sustainable development achieve करना है तो इनमें से कौन सा ऐसा example है which is the example of evolutionary and iterative process? Flood control management, solid waste management, integrated coastal zone management, natural ecosystem zone। So देखो इसमें जो integrated word लगा है, the word which is integrated, as I told you many times that when you are going for engineering success paper 1, you need to find out the clues from where you can correctly hit the answer। You need to in the answer choices find the choices which you can eliminate, and also आपको ऐसी choice ढूंढनी है जहाँ से तुम्हें idea लग सके कि हम इसका क्या आंसर लगा सकते हैं। Suppose you have no idea about the answer choices, then this integrated coastal zone or iterative and evolutionary process। So integrated system normally iterative and evolutionary होते हैं। Integrated means there will be different kind of systems, different kind of subsystems जिनको integrate करके तुम्हें coastal region का manage करना है, zone को manage करना है। तो वो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि how it is to be done and how it can be done। So थोड़ा सा आपको उसका हिंट मिलता है। सो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ये कोस्ट रीजन का मैनेजमेंट होता है यूजिंग द इंटीग्रेटेड अप्रोच, राइट। सो द पर्पस इज टू अचीव सस्टेनेबिलिटी। डायनेमिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, आइटरेटिव प्रोसेस है, एंड पर्पस इज टू प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दिस रीजन। सो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट बेसिकली is a sort of balance between various objectives and goals for coastal zones, and it includes economic activities, environmental protection, social needs।
So coastal communities are to be taken care of, economic activities are to be taken care of, and environmental protection of the ecosystem is also to be taken care of. So there is a balance which you have to make in different kind of activities and different kind of zones. So economic balance, environmental balance, social balance, so those all activities are to be balanced so that you get these kind of things. It's the entire cycle, like collection, planning, decision making, management, monitoring. So this is entire things going parallel. Now everything is interconnected, and that is the reason this basically has to go in a very integrated manner. So this integrated coastal zone management is a continuous and iterative process that involves the planning of various strategies, implementing those, monitoring, evaluation, and in line of evaluation adaptation. So ये सारी की सारी चीज़ parallel चलती है इसमें. And on the other hand, flood control management, disaster management, flood को हमें रोकना है. Solid waste management, that means solid waste को हमें manage करना है, उसको collect and treat करना है. So this is how these things are related. And integrated solid waste management system is also there, in which these are the various activities: waste generation, source separation, collection, transfer, transportation. So ये उसका एक flow chart है, how it is done. So little bit idea about integrated solid waste management activities, right? Let's go for the next, friends. Which of the following practices are adopted for river basin water resource management? मैंने आपको पहले ही बताया था that कई बार हिंट मिलता है तुम्हें. Sometime you will get an idea or a hint from the answer choices. रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिवर बेसिन पे. तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में सॉइल कंजर्वेशन इन कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड फ्लड प्रोन रिवर्स, सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे, कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन. अब इसमें कौन सी प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए? सो यू विल गेट एन आइडिया दैट विच चॉइस कैन यू एलिमिनेट, विच चॉइस इज समथिंग विच कैन एलिमिनेट. सो deforestation, as you understand, that comes under the deforestation activities or forestation activities. तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. बाकी जो सॉइल कंजर्वेशन कैचमेंट एरिया में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे इज टू बी डन. एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑब्वियसली शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज समथिंग लाइक आप कहीं से उसको कल्टीवेशन यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद उसको छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ सॉइल इरोजन. सो ये बेसिकली आपका सॉइल इरोजन के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है. रिवर बेसिन्स जो हैं वो वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने का एक तरीका है. और जैसे से आप वाटर यूज़, क्लाइमेट चेंज, लैंड यूज़ चेंजेस इंटेंसिफाई होता जाएगा, तो वैसे वैसे रिवर बेसिन को आपको सस्टेन करने के लिए बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा. सो कुछ जो टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, दैट इज़ दिस, you go for afforestation and you control. एक और यहाँ पे आप ये देखना कि अगर हमें रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है, which of the following practices are adopted for management. तो यहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन की जगह से एफॉरेस्टेशन लिखा होता तो देन इट इज ओके. हाँ, हमें और प्लांट्स लगाने हैं. डिफॉरेस्टेशन विल बेसिकली लीड टू इवन फर्दर ट्रबल. सो हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वी डोंट वांट शिफ्टिंग कल्टीवेशन. हम सर्वे कर रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन से आपका रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा. तो एफॉरेस्टेशन अगर दिया होता तो हमारा आंसर सही होता. नाउ इट इज डिफॉरेस्टेशन. हाउ कैन डिफॉरेस्टेशन बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिस टू manage the river basin water resources? Deforestation cannot be done. In fact, it is the reverse. Afforestation can be used. तो अगर ये वाली चॉइस तुम्हारी गलत है, फोर्थ चॉइस, then the only answer left with you is D answer, right? That is the only thing. So these are the practices which are adopted for river basin water resource management. राइट. सो इन इंजीनियरिंग सर्विसेज आप एलिमिनेशन से एक बहुत अच्छा
आंसर लगा सकते हैं. सो इफ यू यूज योर कॉमन सेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो कि नहीं यार ये चीज़ तो नहीं हो सकता, एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर दो, देन यू कैन हिट द राइट आंसर फॉर दैट. Okay, let's read the next question, friends. According to Stokes' law, rate of settling of particle depends upon terminal velocity Vt, which is given like this. Yeah, so this Stokes law, rate of settling of particle depends on terminal velocity. So this is a formula, friends, right? So this Stokes law and how to calculate the settling velocity, terminal velocity, उसका एक डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के मेंटर करवाएंगे. आई थिंक इट विल बी डन एंड द आंसर फॉर दैट इज दिस फार्मूला ए, right? So this is the formula for that. But as I told you, the mentors of this civil engineering will explain Stokes law, which is used for settling velocity of small spherical particles in the fluid medium. Terminal velocity is the constant velocity which the particle will attain जब acceleration 0 हो जाती है. This is a constant velocity. So with what velocity that particle will come down. So there are different forces acting on particle. जब net force 0 हो जाएगी तो that particle will start coming with the constant velocity in the fluid and that velocity is called terminal velocity. उसका formula ये है in which diameter of the particle is given, density of the particle is given, density of air is also given, velocity of air is also given. So this formula you have to use for calculation of that, right? C is a constant, so these terms are already given to you. Okay, another formula which was asked in 2020 was sound level L, जो निकाली जाती है डेसिबल में. तो साउंड लेवल Q इज द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर और साउंड इंटेंसिटी एंड दिस इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर. हमने इसको कवर भी किया हुआ है. वन ऑफ द लेक्चर्स इज ऑन द साउंड लेवल, वेरियस डेसिबल्स. सो प्रेशर लेवल इज रेशियो ऑफ प्रेशर, साउंड प्रेशर टू बेस लेवल. एक बेस लेवल हम डिसाइड करते हैं साउंड प्रेशर लेवल, जो लॉगरिथमिक प्रेशर, लॉगरिथमिक मेजर होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर साउंड प्रेशर का ऑफ अ साउंड रिलेटिव टू रेफरेंस वैल्यू, जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है, और इट इज मेजर्ड इन डेसिबल. साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन द डेसिबल्स. So formula to calculate that is basically given as this. Sound pressure level, decibel is this. This is a formula for that, and this formula also has been explained. So yes, if you put all these values, then you will get this particular value. 1 decibel is 10 into bells. Yeah, so this has already been explained, so you can go for that. Now friends, what is NEPA? So NEPA is National Environment Policy Act, and this was the first law by United States of America in 1969 on environment. तो जैसे ये लॉ बना उसके बाद बहुत सी और कंट्रीज ने भी अपने लॉज बनाना स्टार्ट किए, बट दिस वाज द फर्स्ट लॉ बाय अमेरिका एंड आफ्टर दैट मेनी न्यू लॉज केम. So NEPA was the first law, and this was by United States. It was made by President Nixon during his tenure, and the outcome was Council of Environment Quality. तो ये पहली बार था कि US ने एक ऐसा लॉ बनाया which was to check the environment pollution. So purpose of NEPA was to make a national policy, so that environment is not polluted, environment is protected, and to promote those efforts which prevent, eliminate damage to the environment or biosphere, and understand the ecological system and natural resources are protected, and to establish council on environmental quality. Okay, so out of various gases, which gas is colorless with a strong odor, irritate mucous membrane at common levels, and can lead to cough, fatigue and interference in lung functions? So that is basically ozone. So friends, there are some kind of small differences in the gases. So ozone is basically irritating gas, which is a quite irritating gas,
So this leads to headache, nausea, chest pain, coughing. These kind of problems will come. And this carbon monoxide is poisonous, odorless, colorless, tasteless gas. This also leads to the same kind of problems, right? Carbon monoxide is also very dangerous gas. So I think this carbon monoxide is very flammable gas also. Ozone gas is having a color, it is not colorless. So let me check whether it is colorless was given, because if it is colorless, it it can be it can lead to, because in the choice it was given colorless, strong odor, irritate membrane at common level, and leads to these kind of things at higher concentration. So either it is ozone or it is carbon monoxide, but if it is colorless, then it is carbon monoxide. So yeah, this is to be seen where it is ozone or it is carbon monoxide. So both were having similar kind of impact on human, and even carbon monoxide has impact on the lungs of human being also. Okay, so because a strong odor is given, and this ozone has basically strong odor, and it is having this carbon monoxide is odorless. So answer for this will be ozone, because that is ozone is having odor and carbon monoxide is odorless gas. So I think it will be the ozone will be the answer for that. So what is the hygienic way of disposing solid waste, and more suitable if waste contains hazardous material and organic content? So friends, the incineration, this is the one of the best ways to dispose of solid waste when it is hazardous waste. Hazardous waste are those which are containing some kind of hazardous trait like this: toxicity, corrosivity, ignitability, reactivity, those kind of things. So most common methods are land disposal or incinerations. If sufficient land is available, then okay, land disposal can be the answer, but if sufficient land is not available, then incineration can be good way. What is incineration? Is to burn the solid waste in the furnace until this gets converted into ashes, and when it is combined with oxygen, burning takes place, then carbon dioxide and water is the outcome, that is the product which is left. So incinerators are designed in such a way that do not give off lot of heat actually. So the volume of the waste will reduce further. It becomes only 20 to 30% of original volume. So this is one of the best ways of solid waste management. This is the diagram of incinerator. So there is a burner actually. So you put all the things here on the bed, and then oxygen is supplied and burning takes place. There is another way, that is a recycling, right? So it is a process of converting the waste material into reusable object to prevent the waste, that is a recycling. Landfill or burying, disposal of waste material by burying it. आप उसको लैंड में दबा देते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए होता है ये. So decomposting or composting is actually due to lack of adequate space for landfills. Biodegradable material is allowed to decompose in a medium designed for this purpose. Only biodegradable waste material are used in composting. सो एक बहुत अच्छी मैन्योर इससे बनती है कंपोस्ट से, एंड उसको एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. डीकम्पोज जो उससे एक मैन्योर आप बना सकते हैं, दैट कैन बी डन. सो फ्रेंड्स, बेसल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, और बेसल कन्वेंशन एक्चुअली इज रिलेटेड टू ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट.
बेसल कन्वेंशन अलॉन्ग विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था एंड इट वाज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड इट इज़ इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू रिड्यूस मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। Montreal Protocol, it was related to depletion of the ozone layer. So depleting substance related to those substance which deplete the ozone layer, और इसके ऊपर एक dedicated वीडियो भी बना हुआ है। Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Basel Convention, और Kyoto Protocol was related to putting some kind of limits on greenhouse gases। तो ये अलग अलग बेसिकली 3 मेन वो हैं, उसके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। सो अगर आपको NOx एमिशन को रिड्यूस करना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे? मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स एलिमिनेटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी पेपर, एलिमिनेशन। सो बाय रिड्यूसिंग पीक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो NOx निकलता है। NOx is related to exhaust gas from the power plant or automobile when the combustion takes place at high temperature and oxygen supply. But if you peak temperature is more, yes, high temperature engines will give you NOx. By increasing the availability of N2 for reaction with O2, तो उससे रिड्यूस नहीं होगा, उससे तो इंक्रीज होगा। वो बोल रहा है सजेस्टेड वे टू रिड्यूस, तो ये देखो रिड्यूस करना है मेरे को NOx एमिशन, आई वांट टू रिड्यूस द NOx emission, बट यहाँ क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ N2 फॉर रिएक्शन, तो ये अपोजिट है। तो 2 कैन नॉट बी द आंसर, 2 cannot be the answer. So if 2 is not the answer, the only answer left is B, 1 and 3. So these are the ways how to limit NOx, right? Reduce the peak temperature, reduce the oxygen concentration, reduce even availability of nitrogen. सो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपका पेपर 1 है फ्रेंड्स, उसमें एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में से क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। मेरे को लगता है 7-8 क्वेश्चंस आर प्रेटी सिंपल, एंड इफ़ यू मेक यूज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट and make use of elimination, common sense, then you can hit the answers which are correct. Don't forget to go through entire topics which have been added and provided to you by Europedia, and I think they are sufficient for you to score good in this particular paper. And as you know this engineering system, there is a technical part and general aptitude part. If you give effort, if you put effort in both, then your overall score can be good. And don't forget to go through each and every topic separately covered for the preparation. Thank you. Hello everyone, I'm Dr. Sahil Moore. So today I will be presenting questions on energy and environment that appeared in Indian Engineering Services 2020. So today we will cover topics on solid waste management, biomedical waste, noise pollution, and also settling of particles. So let's start with question number 1. Question 1 states that which one of the following is a hygienic way of disposing solid waste and is more suitable if the waste contains more hazardous material and organic content. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हजार्डस मटेरियल के डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। तो 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता कि कंपोस्टिंग एक बायोलॉजिकल मेथड है। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल मेथड। तो बेसिकली कंपोस्टिंग हमारी 2 टाइप की होती है, एक इंडोर प्रोसेस होता है और एक बेंगलोर प्रोसेस होता है। जो इंडोर प्रोसेस होता है वो हम बोलते हैं उसको एरोबिक प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट की हमारी मैनुअल टर्निंग होती रहती है। ठीक है, मैनुअल टर्निंग से क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है और हम कोशिश करते हैं जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो अराउंड 55% रहे। अराउंड हमारा ये प्रोसेस 3 to 4 मंथ चलता है, जिसमें हमारी कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाती है वेस्ट की। सो फर्स्ट क्या है इससे, अगर हम कंपोस्टिंग की बात करें तो फर्स्ट इज इंडोर, जो कि हमारा होता है एक एरोबिक प्रोसेस। सेकंड इसके अंदर आता है बेंगलोर प्रोसेस। ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये सिटीज के नेम पे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता लग रहा है।
बेंगलोर क्या है, एक एनएरोबिक प्रोसेस है, एनएरोबिक प्रोसेस। इस बेंगलोर प्रोसेस के अंदर हमको कोई मैनुअल टर्निंग नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए हमारा जो भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है वो ज़्यादातर बेंगलोर प्रोसेस को यूज़ करती हैं। इसके अंदर हमारा वेस्ट जो है हमारा 4 to 5 मंथ्स में अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। और इसके अंदर हमको जो मेन जो बात ध्यान रखनी पड़ती है वो होता है हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशो। जो हमारा इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशो होता है वो 30 to 50 होता है, 30 to 50। तो बेसिकली दो होता है, इंदौर एरोबिक, बेंगलोर एनएरोबिक। तो आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि हमारे कौन से दो मेथड्स हैं कंपोस्टिंग के, ठीक है, और इनमें से कौन सा हमारा एनएरोबिक प्रोसेस है या कौन सा एरोबिक प्रोसेस है। तो सिंपली दो बातें ध्यान रखनी है, और मेन है इसके अंदर CN रेशियो जो 30 to 50 होता है। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, इंसिनरेशन। यस, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के अंदर हमारा जो भी हजार्डस मटेरियल है वो कंप्लीटली बर्न हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हम अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर पे जो भी हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है वो बर्न हो जाता है। बस इसमें हम इंसिनरेटर प्लांट्स में वेस्ट को डालने से पहले जो भी हमारा नॉन कंबस्टिबल वेस्ट है उसको हम निकाल लेते हैं, जैसे ग्लास हो गया हमारा या फिर कोई भी मेटल्स हो गए हैं, तो उनको पहले सेग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो ओनली कंबस्टिबल मैटर सच एज गार्बेज, रबिश एंड डेड एनिमल्स आर बर्न्ड एंड अदर इनकम्बस्टिबल मैटर आर आइदर लेफ्ट बर्न्ड और आर सेपरेटेड आउट फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को इस प्रोसेस को एक अच्छी एक वीडियो के थ्रू समझाता हूं। आई हैव अ वीडियो फॉर यू। हम इसको अच्छे से समझेंगे एक्चुअली में होता क्या इंसिनरेशन। सो एक इंसिनरेशन प्लांट है जिसके बॉटम से हमारा जो भी वेस्ट है वो फीड किया जा रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमारा अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर रहा है। एज ए सेड 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर। वेस्ट कंप्लीटली बर्न हो जाता है, उससे कुछ भी हमारी गैसेस निकलती हैं, और इसके हमारा जो भी फ्लाई ऐश वो टाइम रिकवर हो जाता है। ठीक है, और इस फ्लाई ऐश को, अदर पर्टिकुलर मैटर को हम लोगों को रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर एक इंसिनरेशन प्लांट रखते हैं। ये हमारा इंसिनरेशन प्लांट है। तो इंसिनरेशन प्लांट हमारा जो पर्टिकुलर मैटर है उसको रिमूव कर देता है। फर्दर इसको क्लीन करने के लिए हम लाइम को ऑब्जॉर्व डालते हैं, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है, और साथ में डालते हैं एक्टिवेटेड कार्बन को। ठीक है, तो इससे हमारे जो भी पोल्यूटेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। हम फर्दर आगे डालते हैं बैग फिल्टर्स। बैग फिल्टर्स जो भी हमारी फ्लू गैसेस को और उसको क्लीन कर देती है। फर्दर हमारा लास्ट में वेस्ट जाता है हीट रिकवरी के लिए। वहां से हम हीट रिकवर करके जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग वाटर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हो गया हमारा वेस्ट टू एनर्जी। इंसिनरेशन प्लांट क्या होता है? वेस्ट टू एनर्जी। इससे हम हीट भी जनरेट कर सकते हैं। जो हमारा जो टेम्परेचर है गैस का वो 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो रिसाइकल्ड हीट कहते हैं हम इसको। ठीक है, सेकेंडली हम रिसाइकल्ड हीट के बाद हम रिसाइकल्ड इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम इस रिसाइकल्ड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाटर को पंप करते हैं। वाटर हमारा यहाँ से पंप होता है, जाता है हमारा ऊपर की तरफ, ऐसे वाटर पंप हो रहा है बॉयलर्स की तरफ। तो 320 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम कंडक्ट होती है। ठीक है, और उसको सुपर हीटर्स पे जाते जाते उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। हम इस टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 535 डिग्री सेल्सियस इन गैस टरबाइन। ओके, फर्दर इस गैस टरबाइन से हम जो भी हमको हीट मिल रही है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क पर्पसेस, जो कि हमारा फर्दर हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज में आता है। सो इट इज नोन एज रिसाइकल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज सेंट टू द टरबाइन एट अराउंड 535 डिग्री सेल्सियस, जहां से फिर हमारी स्टीम के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो वेस्ट टू एनर्जी हम प्लांट कह सकते हैं इंसिनरेशन प्लांट्स को। इससे हमें दो चीजें मिलती है, रिसाइकल्ड हीट
एंड ऑल्सो वी कैन गेट रिसाइकल इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जाए कि वेस्ट टू एनर्जी का बेस्ट प्रोसेस कौन सा है, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, पैरालिसिस और लैंड फिलिंग, सो इसका आंसर क्या रहेगा, इंसिनरेशन। हम एक क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव ये है कि आप आपके आगे वाला एग्जाम को क्रैक करा सकें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साउंड लेवल। बेसिकली हमें साउंड लेवल का फॉर्मूला पूछा है। इस फॉर्मूले का आंसर पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साउंड लेवल का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो साउंड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। साउंड प्रेशर ऑफ अ फेंटेस्ट साउंड that can be heard by a healthy individual is around 20 माइक्रोपास्कल, ठीक है। 20 माइक्रोपास्कल तो होता है। और अगर हम बात करेंगे लाउडेस्ट साउंड की, जो कि हमारी होती है टेक ऑफ स्टेज पे बाय एन सैटर्न रॉकेट, जो कि पहुंच सकते हैं हमारी अराउंड 200 पास्कल तक, ठीक है। 20 माइक्रोपास्कल एंड 200 पास्कल। इसी साउंड प्रेशर में एस्ट्रोनॉमिकल वेरिएशन को हैंडल करने के लिए क्या है एस्ट्रोनॉमिकल वेरिएशन हमारी, 20 माइक्रोपास्कल टू 200 पास्कल, ठीक है। ये जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल वेरिएशन है, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं ऑन द स्केल ऑफ लॉग to the ratio of this measured quantity of sound pressure divided by reference standard quantity of sound pressure, ठीक है। हम बेसिकली इसका log स्केल लेते हैं, ठीक है। log स्केल किसका ले रहे हैं, Q डिवाइड बाई Q नॉट, जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है, और एक हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी रख दी है, ठीक है। तो जब हम इसका log ले लेंगे, ठीक है, जो भी हमारी ये एस्ट्रोनॉमिकल वेरिएशन आ रही है, तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इस फॉर्मूले इसलिए हमारा लॉग दिया हुआ है हर ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा सी, log 10 ऑफ Q डिवाइड बाई Q नॉट, जो कि दिया हुआ है बेल्स में, ठीक है। यूनिट क्या है, बेल्स। ये जो हम बात कर रहे हैं वेरिएशन की, जो हमारा 200 पास्कल है, मतलब 200 पास्कल इतना ज़्यादा लाउड हो जाता है कि जब भी हमारी टेक ऑफ स्टेज होती है, उससे हमको 5 किलोमीटर दूर तक अगर कोई विजिटर देखना चाह रहा है, उसको 5 किलोमीटर दूर बिठाया जाता है, ठीक है। तो और जो हमारी बेल्स है, हम जनरली बेल्स को हम रिप्रेजेंट करने की जगह कभी हम चाहते हैं इसको डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेल्स एक लार्ज क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 1 डेसिबल इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ बेल। व्हाट इज डीबी? डीबी हमारा डेसिबल की यूनिट है, ठीक है। तो फर्दर जो भी मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूले ड्राइव करके बताया है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। तो आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है कि साउंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो सिंपली इन फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी क्यू नोट है रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको बस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। उसको अगर हम 20 माइक्रोपास्कल ले लेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा साउंड प्रेशर का, 20 log 10 PRMS डिवाइडेड बाई 20 माइक्रोपास्कल। तो इससे हमारा निकल जाएगा साउंड प्रेशर। और अगर हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालनी है, तो हम रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिप्लेस कर देंगे 10⁻⁻12 से, ठीक है। 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारा आ जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है। तो साउंड लेवल का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ ले साउंड प्रेशर क्या होता है, अगर पूछ ले साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, तो उनके फॉर्मूले यही हैं, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन के हमें प्रोवाइड क्या करती है, ठीक है। अब बेसल कन्वेंशन एक सिंपली एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी, जिससे हम ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट रोक सके हजार्डेज वेस्ट की, ठीक है। मेनली हम इसको हजार्डेज वेस्ट की मूवमेंट को रोकना चाह रहे थे फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज पे ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ पे हजार्डेज वेस्ट की ज़्यादा जनरेशन हो रही है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं,
वहाँ पे अपने सोर्स पे ही उसको रिकवर ना करके या फिर उसको प्रोसेसिंग ना करके वो जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उन पे एक स्पेसिफिक अमाउंट पे उनके पास भेज देते हैं थ्रू शिपिंग, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा वेस्ट अक्रॉस ग्लोब फैल रहा था, ठीक है, फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जिसको बोलते हैं एलडीसी। तो इसी ग्लोबल पॉल्यूशन को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन आई, जो कि साइन हुई थी हमारी 1989 में, सिग्नेचरी के लिए आई थी। बेसिकली जब आपसे पेपर में पूछेंगे बेसल कन्वेंशन कब आई थी तो आपको बोले 1989, ठीक है। और इंडिया ने कब साइन किया था इसे, 1992 में, जून में। एज पर द लेटेस्ट डाटा 2024 तक 191 पार्टीज ने इस कन्वेंशन को साइन कर दिया है, ठीक है। पर जो मेनली हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको अभी तक साइन करा है पर इसको रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन से रिलेटेड, बेसल कन्वेंशन हो किस चीज के लिए है और ये क्यों हुई, कब साइन हुई, ठीक है। आपसे बेसिकली ये पूछा भी जा सकता है कि हजार्डस वेस्ट होता क्या है, ठीक है। कोई भी वेस्ट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक्सप्लोसिव होने की, फ्लेमेबल होने की, ऑक्सीडाइजिंग होने की, या फिर वो पॉइजनस इन्फेक्शियस होने की, टॉक्सिक होने की, कोरोसिव, और इनमें से अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कहलाएगा आपका हजार्डस वेस्ट, ठीक है। Our next question is related to the Stokes law. ये पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी। बेसिकली आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब पार्टिकल अगर सेटल हो रहा है तो डिपेंड करता है टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी पे, तो वो क्या होगी हमारी। स्टोक्स लॉ सिंपली हमारा सेटिंग वेलोसिटी निकालती है स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स की, ठीक है। एक फ्लूइड मीडियम के अंदर जो स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स है वो कैसे सेट होंगे, कौन बताता है, हमारा स्टोक्स लॉ, ठीक है। और जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो एक डिफाइन करते हैं कि जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी जब हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है जब हम एक्सेलरेशन हमने जीरो कर दी है। तो बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है, जिसमें हमारा डीपी क्या है, पार्टिकल डायमीटर, रो पी है हमारा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, रो ए है हमारा डेंसिटी ऑफ एयर, म्यू है वेलोसिटी ऑफ एयर, एंड पी इज एयर प्रेशर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ terminal velocity. So correct answer for this question will be option number A. GdP square divided by 18 mu A multiplied by rho P minus rho A multiplied by 1 plus 2C divided by dP multiplied by P. Okay, C क्या हमारा कांस्टेंट है, कुछ में पार्टिकल डायमीटर दिया हुआ है, अगर उस पार्टिकल डायमीटर को अगर हम 18 म्यू ए से डिवाइड कर देंगे और फर्दर अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, उसको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 2 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एयर प्रेशर। तो एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका सिंपली एक फॉर्मूला आपको जो याद रखना पड़ेगा, ये है हमारा टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी का।